کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا کی کہانی دنیا کو انسانیت کا ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیشہ انسانوں کو سچ کے خاطر لڑائی کے لیے پریرت کرتی رہے گی۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے ایک ایسے سچے قصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامک دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی غمزدہ نظر آتے ہیں؟ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے اینگل کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو اسلام کی کتاب کے اس پنے سے روبرو کرانے والے ہیں جس کو کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کربلا کی کہانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی بھی کہانی کے کلائمیکس سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی۔ اس کا بھی ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ فی الحال ان شارٹ میں اتنا سمجھ لیجیے کہ حضرت محمد صاحب نے اسلام دھرم کی شروعات کی۔ عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے محمد صاحب کا ایکیشور واد پسند آیا۔ اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ حضرت محمد صاحب کے بعد کیا ہوا؟ حضرت محمد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد پیغمبر آنے کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ۔ پیغمبر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ حضرت علی نے پیغمبر صاحب کے اسلام کو عوام تک پہنچانے میں بہت ہی مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر صاحب چاہتے تھے کہ ان کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ پیغمبر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا، میرے بعد حضرت علی کی اسلام کے لیڈر ہوں گے۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جب 8 جون 632 عیسوی کو محمد صاحب کی مرتیو ہوئی تو کچھ لوگ ستہ کی لالچی ہو گئے۔ اصل میں کچھ ایسے لوگ اسلام دھرم میں شامل ہو گئے تھے۔ پہلے وہ محمد صاحب سے لڑتے تھے، ان کی حفاظت حضرت علی نے کی، اس لیے یہ لوگ حضرت علی کے دشمن بن گئے اور اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنے لگے، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو پیغمبر صاحب کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستہ کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے دو خیموں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ایسا نہیں مانتے تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر کار حضرت علی کو اسلام میں خلافت مل گئی، وہ چوتھے خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت علی کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت حسین۔ حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن کی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن اس وقت سیریا کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ معاویہ نے حضرت امام حسن کو بھی مروا کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے ستہ حاصل کرنے والے نے یہاں کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یزید کون تھا؟ معاویہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یزید۔ یزید ایک کریکٹر لیس، شرابی اور مکار قسم کا انسان تھا۔ وہ جنگلوں میں رہا ہے، اس لیے جنگلی قسم کا انسان تھا۔ معاویہ نے خلافت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ یزید جیسا انسان اسلامک ستہ کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یزید نے اپنی سینا کی
सहायता के इस्लामिक दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीद की बैयत मानने से इनकार कर दिया। यजीद की बैयत ना मानने वाले इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और मौला अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को हुआ था। अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत क्यों स्वीकार नहीं की? यजीद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। इमाम हुसैन चूँकि हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए यजीद के लिए ये ज़रूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते। अगर इमाम हुसैन यजीद को बैयत कर लेते तो पूरा इस्लामिक जगत यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता। यजीद को अपनी हुकूमत पर आवाम की स्वीकृति मिल जाती और इमाम हमेशा हमेशा के लिए शैतानी कानून बन जाता। इमाम हुसैन इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने इमाम हुसैन को ख़त्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उन्हें ख़त्म करना चाहता है, तो उन्होंने 4 मई 680 ईस्वी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली, तो उसने काबे की तरफ अपनी फ़ौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही ख़त्म करना चाह रहा था। जब इमाम को इस बात का पता चला, तो वो इराक़ के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वो ये चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो। यहाँ से करबला की कहानी की शुरुआत होती है। करबला की 10वीं मुहर्रम की तारीख। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी और करबला पहुँच गए। अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार 1 अक्टूबर का महीना सन 680 ईस्वी थी। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथी, महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के करबला जाने की एक वजह ये भी थी कि इराक़ और कूफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे, ताकि इमाम हुसैन उन्हें यजीद के जुल्म सितम से बचा सके। फ़िलहाल इमाम हुसैन करबला पहुँचे। उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ ज़मीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा दिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूफे और इराक़ के वो लोग जो उन्हें खत लिखते थे, यजीद के डर से उनसे मिलने नहीं आए। यहाँ से करबला की जंग की शुरुआत हुई। यहाँ करबला की जंग कहना सही नहीं रहेगा। जंग तब होती है जब दोनों तरफ से जंग की ख्वाहिश हो। इमाम हुसैन अपने सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे। उनका मकसद जंग करना नहीं था। लेकिन यजीद ने अपनी 1 लाख से ज़्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। यजीद का मकसद साफ था। वो इमाम हुसैन को ज़िंदगी का डर दिखाकर उनसे बैयत लेना चाहता था। यजीद की सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी। पुराने ज़माने में जो जंगें हुआ करती थी, उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे। मसलन बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में पानी बंद नहीं किया जाएगा, निहत्तों पर वार नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इस सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्तां दिखी, जो आज भी इंसानी दिमाग में सिरहन पैदा कर देती है।
यजीद ने पहले तो इमाम हुसैन को सेना का डर दिखाया। इमाम हुसैन ने यजीद से यहाँ तक कहा कि वो अपने परिवार को लेकर उससे और उसकी सत्ता से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन यजीद नहीं माना। उसे तो हर हाल में इमाम हुसैन से अपनी बैयत लेनी थी। अपनी बात न बनते हुए देखकर यजीद ने इमाम हुसैन और उसके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन ने कुनबे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन यजीद को उस पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन यजीदी सेना तो जैसे दिल पर पत्थर रखकर जंग के मैदान में उतरी थी। इमाम हुसैन के खेमों के बच्चों तक को पानी नहीं मिला। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन की ये बात सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ लोग इस बच्चे को देखकर मुंह छिपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज का एक कमांडर जिसका नाम हुरमुला था, उसने 3 नोक का तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये तीर सीधा असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का एक छोटा सा बच्चा वही शहीद हो गया। करबला के मैदान में एक क्रूरता की इंतहा थी जब इमाम हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया। इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशों के बाद जब ये तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी, तब उन्होंने जंग से एक दिन पहले यानी 9 मुहर्रम को अपनी सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा कर खेमे के अंदर चल रहे चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को कहा कि यजीद मुझे मारना चाहता है, कल मेरी मौत निश्चित है। इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में से जो भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता था वो जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वाले का यजीद की फौज भी कुछ नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा भी कर दिया है। आप लोग अपने फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। ऐसी मिसाल भी करबला से पहले दुनिया में नहीं देखी थी। 10 मुहर्रम को हुई करबला की जंग। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में खून का दरिया बह निकला। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के बेटे कासिम को यजीद की सेना के घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी जब तक लड़े अपनी पूरी हिम्मत से लड़े। यजीदी सेना के हजारों सिपाही मारे गए। करबला की जंग में इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए? करबला के मैदान में जब एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चे के अलावा उनका एक बेटा ही बचा था। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फिकार को लेकर मरते दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमला करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे। जब इमाम हुसैन थक गए तो शिम्र नाम के एक यजीदी ने कुंद धार की तलवार से इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को शहीद कर दिया। तो ये थी करबला की कहानी, जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।